Yes, hello Amit, welcome on Europedia platform and let's start your RAC snap for your BPSC interview for the post of lecturer in various polytechnic colleges of Bihar. Thank you, sir. So Amit, you want RAC snap, so I hope you are having some basic understanding related to the application use of air conditioning system. So Yes, can sir. you Yes. tell me the difference between a central air conditioning system and what you understand by year-round air conditioning? So year-round conditioning and central air conditioning. हाँ, central air conditioner. Yes, sir. Yes, sir. आराम से सोच के बताना है अमित. मैं सोच रहा हूँ. I hope you heard about summer air conditioning, winter air conditioning. तो Yes, sir. similarly, Yes, sir. year round air conditioning भी होता है. तो you can tell me the difference between summer air conditioning, winter air conditioning और year round air conditioning. Sir, in summer air conditioning. 1 minute, sir. Yeah. Sir, in summer air conditioning, cooling and dehumidification occurs. Whereas in case of winter conditioning, humidification and heating process occurs. And another one, what you asked, central air conditioning. Sir, sorry, sir, I don't know about the central air conditioning. अच्छा, आपने डक्ट के बारे में कुछ पढ़ा? You heard about duct design? Sorry, sir. ठीक है. What about load calculation? You are comfortable in calculating the load of air conditioner, अमित? मान लीजिए आपको एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम डिजाइन करना है फॉर ए बैंक. एक कोई SBI का बैंक है, उन्होंने आपको बुलाया बिकॉज यू आर एक्सपर्ट इन दैट एरिया एयर कंडीशनिंग, और आपसे पूछ रहे हैं कि इस रूम में कितने टन का हम सिस्टम लगाएं. यस सर. कैसे फाइंड आउट करोगे आप? सर कैपेसिटी पे, ये उसका साइज क्या है रूम का, उस पे डिपेंड करेगा सर, दो चीजों पे. अच्छा, रूम के साइज आपने चलो मेजर कर लिया, देन उसका फिर कैपेसिटी सर, उसमें कितने लोग मतलब रहेंगे, इस पे भी डिपेंड करेगा सर. ठीक है. हाँ सर, मोस्टली ये दोनों सर. बैंक के लिए ये ज्यादा मैटर करेगा या ये ज्यादा मैटर करेगा कितने कंप्यूटर्स वहां रखे हैं? हाँ सर, ये भी मैटर करेगा सर. कितने लाइट्स वहां चल रही है? नहीं, यस सर. यस सर. यस. तो जितने लाइट्स होंगी वो सारे वो दे आर गोइंग टू ऐड द सेंसिबल लोड. बहुत सारी लाइट होती है, बंदे तो 5-6 ही होते हैं बैंक में. छोटी ब्रांच में अगर हम बात करें 5-6 लोग होते हैं, उतने ही कंप्यूटर होंगे, उतने ही लाइट सोर्स होंगी, फैंस होंगे. नहीं? यस सर. अच्छा, इफेक्टिव टेम्परेचर से आप क्या समझते हो? इफेक्टिव टेम्परेचर. यस यस सर. सर ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ सर, इफेक्टिव टेम्परेचर इट मींस दैट जहाँ पे ह्यूमन कंफर्ट, जो मतलब कि जहाँ पे ह्यूमन सर कंफर्ट मतलब फील करे सर अपने आप को, दैट टेम्परेचर इज इफेक्टिव टेम्परेचर. आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक सो. What is degree of saturation? Sir, it is the ratio of the specific humidity to the specific humidity at a saturation point. Acha, can you tell me the difference between dry bulb temperature, wet bulb temperature, and dew point temperature? Yes, sir. Sir, dry bulb temperature is the temperature of the moist air, which is measured by the simple thermometer. And wet bulb temperature is the temperature of air when the sir bulb is covered by the wet cloth. And the saturation dew point temperature is the saturation temperature corresponding to the partial pressure of the water or corresponding to the initiation of the condensation. What is bypass factor? Sir, bypass factor can be defined as a fraction part of total inlet air
which is not coming in contact with the coil, or it can be defined as it indicates the inefficiency of the system. So how you will calculate it for a cooling coil? Yes, sir, for a cooling coil. One minute. Yes, sir. First of all, sir, first of all, we know हम लोग सर ये कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर जान रहे हैं, सैचुरेशन, लेट्स सपोज सैचुरेशन टेम्परेचर इज देयर एंड वन इज इनलेट टेम्परेचर T1 एंड आउटलेट टेम्परेचर T2. तो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जो इसमें होगा सर, वो जो हमारा कूलिंग कॉइल का होगा उसका सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर होगा. उसके बाद जो हमने कूल किया है सर T2, जो हमारा कॉइल से पास आउट हुआ है T2, और उसके बाद फिर सर T1. तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो नीचे होगा सर. जैसे कि मान लीजिए मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस जो है सर, वो TS जो हमारा कूलिंग कॉइल है, और जो इनिशियल का टेम्परेचर है वो सर, इट मीन सर T1 माइनस TS. उसके बाद जो हमारा एक्चुअल ड्रॉप हुआ है सर, मतलब कि उसके बाद सर या T2 माइनस TS, ये हमारा बाईपास फैक्टर होगा कूलिंग कॉइल का सर. What do you understand by multi-stage compression? What is the advantage of carrying out multi-stage compression? Yes, multi-stage compression. सर अगर मल्टी स्टेज हम कंप्रेशन करते हैं सर, तो मुझे सर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का मुझे वेपर मिलेगा सर, रेफ्रिजरेंट का. उससे और क्या हो सकता है? सर इन केस ऑफ VCRS और एनीथिंग, एनीवेयर, कहीं भी, इवन इन ब्रेटन साइकिल, रिवर्स ब्रेटन साइकिल. यस सर, यस सर. सर by network is going to increase if you're doing the multi-stage compression. Network is going to decrease. Increase sir, increase sir. किस में, ब्रेटन में या रिवर्स ब्रेटन में? सर इसमें ब्रेटन में तो ब्रेटन में भी बढ़ जाएगा सर, और इसमें भी, दोनों में बढ़ जाएगा सर, ब्रेटन में भी और रिवर्स ब्रेटन में भी. मतलब आपका जो सिस्टम है उसका COP घट जाएगा मल्टी स्टेज कंप्रेशन से, बेल कोलीमैन में. हाँ सर, अगर यस सर. अच्छा, क्या आप ड्रॉ कर सकते हो अमित? कैन यू ड्रॉ द रिवर्स ब्रेटन साइकिल विद द? यस, यस सर, यस सर. ड्रॉ करो मल्टी स्टेज कंप्रेशन के साथ. यू कैन गो फॉर 2-stage compression. ओके सर, ओके. Instead, ideal multi-stage compression you can consider. यस सर. PV डायग्राम थोड़ा क्लियरिटी नहीं है. चलो खैर, ये आपने PV डायग्राम बनाया तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, फिर आपने इंटरकूलिंग लिया कांस्टेंट प्रेशर पे. तो इससे कुछ रिडक्शन इन वर्क हो रहा है, रिडक्शन इन वर्क. तो कैन यू शो मी द एरिया व्हिच इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द रिडक्शन इन वर्क? हमें. यस सर, ये जो एरिया है सर हमारा, विजुअल है सर. ये जो एरिया है सर, दिस वन. हेलो सर.
हेलो। हेलो सर। हेलो। यस सर, यस। एरिया दिखाया था सर हमने। ठीक है, ठीक है। Amit, air refrigeration system we use in aircraft. यस Can you सर, tell यस me सर। why cooling is required? Why air conditioning system is required in aircraft? Aircraft तो बहुत high altitude पे fly करता है, जहाँ पे already outside temperature is very low. Yes, sir. Sir, main advantage is that air has a low weight pattern of refrigeration. नहीं, मैं आपसे ये Because नहीं पूछ रहा हूँ कि एयर रेफ्रिजरेशन क्यों यूज करते हैं, मैं पूछ रहा हूँ रेफ्रिजरेशन क्यों यूज करते हैं। वहां तो हीटिंग सिस्टम यूज करना चाहिए ना। एयर कंडीशनर तो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है, जहाँ पे टेम्परेचर इज इन द रेंज ऑफ -20 -30 कुछ ऐसे रहता है आउटसाइड टेम्परेचर। हम्म। तो वहां तो हीटिंग नहीं यूज करना चाहिए, कूलिंग क्यों करते हैं। अच्छा। सर मेरा तो ओपिनियन यही है कि सर ये मतलब कि वेट का क्राइटेरिया है यहाँ पे सर। नहीं, वेट का क्राइटेरिया तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम को चूज करने में है कि एयर हम्म। रेफ्रिजरेशन को क्यों चूज करते हैं ओवर वीसीआरएस, एंड दैट इज राइट एक्चुअली। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्यों चूज करते हैं ओवर वीसीआरएस, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है। ओके सर। चलो अच्छा, अभी आप कह रहे हो कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो लाइट वेटेड होता है, यस सर, यस। ऐसा कैसे बताओ। सर एयर जो है, एयर मैं बोल रहा हूँ कि बट मतलब जैसे कि हाँ सर, एज कम्पेयर टू द अगर अगर कंपेयर करेंगे सर दूसरे रेफ्रिजरेंट से, तो एयर का जो मॉलिक्यूलर वेट है एज कम्पेयर टू द अदर रेफ्रिजरेंट इसका वो कम है सर। क्यों कम क्यों होता है, वही मैं पूछ रहा हूँ ना, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम लाइट वेटेड क्यों होता है। क्योंकि सर यहाँ पे जो कूलिंग के लिए हमने जैसे कूलिंग के लिए अदर में हम लोग सर अदर रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ कूलिंग के लिए हमने एज ए रेफ्रिजरेंट एयर का यूज करते हैं सर। हम्म। सर कूलिंग के लिए एज ए एयर हम रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं सर। तो इसलिए हल्का होता है। नहीं सर, वो बात नहीं है सर, जैसे हमने बताया था कि सर लो वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। हाँ, तो लो वेट क्यों होता है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। इसमें तो एक्सपेंडर भी लगा होगा, कंप्रेसर लगा है, इवोपरेटर लगा है, यस सर, यस सर। कंडेंसर है, बहुत सारे पार्ट्स हैं। व्हाई इट इज लाइट वेटेड। सॉरी सर। हम्म। चलो अच्छा, आप मेरे को ये बताओ कि कैस्केड सिस्टम आपने पढ़ा होगा अमित। यस कैस्केडिंग, सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कैस्केडिंग। सर, अगर जैसे कि वीसीआर अगर ज्यादा लोअर टेम्परेचर मुझे चाहिए, तो वो वीसीआरएस से मुझे नहीं मिल पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं सर, दो वीसीआरएस को सीरीज में कपल्ड कर देते हैं।
एक ऊपर वाला सर मान लीजिए हाई टेम्परेचर VCRS है और नीचे वाला लो टेम्परेचर VCRS है। तो क्या होता है कि जो लो टेम्परेचर VCRS जो है उसका जो कंडेंसर है वो एज ए एक्ट सर एवेपोरेटर करता है हाई टेम्परेचर VCRS, मतलब फॉर ऑब्टेनिंग सर लोअर टेम्परेचर व्हिच इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय द VCR। चलो मैं अभी आपको फीडबैक देता हूँ। यस सर, यस सर। देखो इसको ना आप थोड़ा सा इसको ये समझना, देखो इंटरव्यूअर ऑलवेज, बिकॉज व्हेन यू आर कमिंग फॉर सम स्नैप आई विल ऑलवेज ट्राई टू आस्क यू सम क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन, यस सर, यस सम अर्लियर आस्क्ड क्वेश्चन इन डिफरेंट वे। यस सर, यस एक लिमिट है, क्यों? ताकि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़े, है ना? यस सर, यस सर, तो वो जरूरी है। और इसको आपको ये नहीं लेना कि मैं हर बार आता हूँ और मैं हर बार मैं RAC पढ़ के आता हूँ फिर मैं नहीं बता पाता। तो नहीं सर, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिस इज ऑल व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग, ताकि हमें एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस बने। देखो इंटरव्यू में आपको बताता हूँ अमित, ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने क्वेश्चन आंसर किए कितने नहीं किए, आपका वे ऑफ डिलीवरी स्टाइल क्या है एंड हाउ यू आर डिफेंडिंग ऑल दोज क्वेश्चंस, दैट मैटर्स। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं भी पता बट फिर भी आप उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर रहे हो, दैट मैटर्स। जैसे कई बार बाउंसर आ जाता है ना, तो कई बार बल्लेबाज क्या करता है, नीचे बैठ जाता है, कई बार उस पर सिक्सर भी लगा देते हैं, सचिन सहवाग जैसे लगा देते हैं ना। तो दोनों चीजें करनी पड़ती है इंटरव्यू में भी, बिना घबराए करना जरूरी, करना नहीं है। यस सर, यस सर। तो देखो थोड़ा सा पढ़ के जाओ। एक आपने ये बताया नहीं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग क्या होता है, ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग क्या होता है, समर विंटर तो आप थोड़ा बता रहे थे बट बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे। RAC को ना थोड़ा सा इस तरह से पढ़ो ताकि आपको इतना फील अंडरस्टैंडिंग आए कि आप एज ए टीचर आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ स्टूडेंट को, बिकॉज फाइनली यू आर गोइंग फॉर सम लेक्चरर पोस्ट ना, तो वो भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कुछ समझाएं उनको। तो अभी मेरे को इम्प्रूवमेंट लग रहा है आपका, आज मेरे को अच्छा लगा क्योंकि आपने ठीक ढंग से हैंडल किया है इसको। इवन देखो जब भी इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इवन अगर कोई एक्सपर्ट भी है उससे भी अगर एकदम डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा तो ही ऑल्सो विल टेक सम टाइम टू रिकॉल दोज थिंग्स। तो ये बड़ा नेचुरल है, ये नेचुरल रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट उसको जितना बेस्ट आप कर सकते हो ना वो आपको करना है, जितना बेस्ट आप रिकॉल कर सकते हो वो नेचुरल एक्सप्रेशंस आने चाहिए। सर आई डोंट नो सर व्हाट इज दैट, इवन यू कैन मेंशन कि सर सम लिटिल बिट आई कैन रिकॉल सर अबाउट दैट समर एयर कंडीशनिंग। सर समर एयर कंडीशनिंग ऑलवेज वी ट्राई टू डू द we try to decrease the temperature and cooling and dehumidification, because in summer we have air with very high humidity, so we carry out the dehumidification as well as cooling। कुछ ऐसे बताओ। या sir, can I use some kind of psychrometric charts to represent that kind of summer air conditioning, winter air conditioning, कुछ ऐसा। तो थोड़ा ट्राई करना है आपको, एक्सप्लेन करना है, जितना भी बेस्ट आप रिकॉल कर सकते हो उन चीजों को एक्सप्रेस करना है। कुछ चीजें जहाँ थोड़ा सा आप दिक्कत थी आपको, जैसे मल्टी स्टेज कंप्रेशन आपने बताया नहीं ढंग से वैसे, बट वो आपने डायग्राम ठीक बनाया, वर्क भी आपका लेस हो रहा है वो भी आपने ठीक बताया। तो अभी तो आप लेस वर्क आ रहा है तो आप तो बता रहे थे कि वर्क बढ़ जाएगा नेटवर्क, तो वर्क कंप्रेशन जो वर्क है ना, कंप्रेशन वर्क हमें डिक्रीज कर जाता है। हाँ तो नेटवर्क घट जाता है। यस नेटवर्क तो डिपेंड करेगा ना, नेटवर्क तो डिपेंड करेगा कि अगर आपका क्या है, अगर आपका पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है तो नेटवर्क बढ़ जाएगा, और अगर आपका एब्जॉर्प्शन पावर साइकिल रेफ्रिजरेशन साइकिल है तो यहाँ घट जाएगा। यस सर। तो मल्टी स्टेज कंप्रेशन होता है कि when we are compressing a refrigerant in a single stage तो work required will be more, but when we are going with multi stage compression followed by intercooling तो हमारा टोटल कंप्रेशन वर्क क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब नेटवर्क तो डिपेंड करेगा ना कि आप पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल रेफ्रिजरेशन साइकिल, वहां आपने गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो बड़ा क्लियरली इसको बताना है मल्टी स्टेज कंप्रेशन क्या होता है और क्यों बढ़ जाता है हाई प्रेशर से। एयरक्राफ्ट जब हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है ना अमित, तो आपने ड्रैग सुना होगा, ड्रैग की वजह से भी एयरक्राफ्ट बहुत हाई वेलोसिटी पे फ्लाई करता है, तो ड्रैग की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है एंड दैट हीट एंटर्स इनटू द एयरक्राफ्ट। तो अगर आपने एयरक्राफ्ट में कूलिंग सिस्टम नहीं रखा तो जो पर्सन अंदर बैठेंगे दे विल फील ह्यूज डिस्कम्फर्टेड, इवन इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर देम टू सस्टेन दैट सिचुएशन कंडीशन। तो ड्रैग की वजह से हीट अंदर जाता है एयरक्राफ्ट के अंदर। दूसरा सोलर रेडिएशन से हीट अंदर जाएगा,
बहुत सारे ऑक्यूपेंट अंदर बैठे हैं तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू लिबरेट एनर्जी, जो रेडिएशंस निकलती रहती है ह्यूमन बॉडी से। अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर हमें एयर कंडीशनिंग नहीं करेंगे तो दैट टेम्परेचर विल बी फार अवे फ्रॉम द ह्यूमन कंफर्ट। ठीक है हमें? Yes, sir. आर Yes, यू गेटिंग सम आइडिया? तो आउटसाइड yes, sir. टेम्परेचर तो ज्यादा है, बट एयरक्राफ्ट बहुत हाई वेलोसिटी पे फ्लाई कर रहा है तो उससे हीट जनरेट होता है जो ड्रैग की वजह से। अच्छा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एयर जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो लाइटर क्यों होता है? इसको बड़े ध्यान से सुनो। एक तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ना एयर रेफ्रिजरेंट है, नेचुरल एयर है, तो आपको इवोपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती। इवोपरेटर कब जरूरत पड़ती है? जब आप अंदर आपका रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट कर रहा है और बाहर आपका जो एयर आएगा, एयर विल कम इन कॉन्टेक्ट विद द ट्यूब्स ऑफ द इवोपरेटर और वो कूल होके बाहर जाएगा। बट इसमें Yes, sir. इवोपरेटर चाहिए ही नहीं। व्हाई? बिकॉज डायरेक्टली वी आर सप्लाइंग एयर इनसाइड द कैबिन। The cold air which is coming out from the cooler, that air directly we are supplying into the cabin, तो evaporator चाहिए नहीं। Are you getting Amit? Yes, sir. Yes, sir. पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें कंप्रेसर भी अलग से नहीं लगाना पड़ता। एयरक्राफ्ट में वी यूज ब्रेटन साइकिल, वी यूज जेट इंजन, तो कंप्रेसर उसमें होता है। और वो कंप्रेसर भी क्या करता है? एयर को कंप्रेस करता है फॉर सप्लाइंग कंप्रेस्ड एयर टू द कंबशन चेंबर ऑफ जेट इंजन। तो वो Yes, सेम sir. कॉमन कंप्रेसर होता है। वो कॉमन कंप्रेसर एयर कंप्रेस्ड एयर सप्लाई करता है रिवर्स ब्राइटन को भी, और वो कॉमन कंप्रेसर कंप्रेस्ड एयर सप्लाई करता है आपके कंबशन चेंबर को भी, जेट इंजन को रन करने के लिए। तो कोई सेपरेट आपको कंप्रेसर नहीं लगाना पड़ता। तो कंप्रेसर रिक्वायर्ड नहीं है, इवोपरेटर रिक्वायर्ड नहीं है। देयर इज ओनली कूलर एंड व्हाट? एक्सपेंडर। Yes, sir. दैट्स व्हाई एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज लाइटर। अब बोलोगे सर एयर एयर होता है इसमें एयर होता है, उसमें रेफ्रिजरेंट होता है। Yes, तो sir. Yes, sir. एयर से मास ऑफ रेफ्रिजरेंट से कितना फर्क पड़ता? कितना मास ऑफ रेफ्रिजरेंट होगा? 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 40 किलो। उससे वेट पे फर्क नहीं पड़ता। वेट पे फर्क किससे पड़ता है? कंपोनेंट से। ठीक है अमित? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक बार इसको रिकॉल कर लेना जो जो मैंने बताया, बाकी इंप्रूवमेंट है आप में। अभी मेरे को अच्छा लगा कि आपने थोड़ा कॉन्फिडेंटली इसको आंसर किए। और बट एक्सप्लोर करते रहो, पढ़ते रहो जब तक टाइम है, और Yes, sir. मोटिवेटेड Yes. होकर आंसर करो, है ना? ठीक है Yes, अमित, sir. गुड लक। Thank you, sir.